یا جب مسجد میں آئیں تو کوشش کریں کہ سوچوں والا سوئچ بند کر دیا کریں، سوچوں والی تار کاٹ دیا کریں۔ جیسے مسجد میں داخل ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے دایاں قدم اندر رکھیں، سوچوں والا سوئچ بند کر دیں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ اب سوچ اس کی طرف، اب خیال اس کی طرف، اب توجہ اس کی طرف۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے سوئچ بند کیا کوئی نہیں ہوتا، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، اقبال نے بھی یہی کہا تھا۔ اقبال کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں۔ اور اگر میں اس کا پنجابی ترجمہ کروں تو یہ بنے گا، بندیا آپے تے تو آ گیا ہے، دل باہر ہی چھڑ آیا ہے، کیونکہ تجھ میں اور مجھ میں رابطے کا ذریعہ ہی دل تھا، وہ تو لے کے کوئی نہیں آیا ہے۔ چل پھر کر رہا ایکسرسائز، اٹھ بیٹھ، ایک وطن واپس ٹوٹ جائے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب اندر آئیں چیک کریں کہ دل میاں سینے میں ہے کہ نہیں، کہیں گھر تو نہیں رہ گیا، کہیں دکان پہ تو نہیں رہ گیا، کہیں فیکٹری میں تو نہیں رہ گیا، کہیں بیوی بچوں کے پاس تو نہیں رہ گیا، کہیں پیلی میں تو نہیں ہے، کہیں ٹریکٹر ٹرالی تو نہیں چلا رہا۔ چیک کیا کریں یہ سینے میں ہے کہ۔ علماء تشریف فرمائیں، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ بروز قیامت سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی بن جائے گی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا۔ جب اتنے معاملات خراب ہوں گے تو لکھا ہے کہ اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا نہیں، اور وہ 7 خوش نصیب جن کو اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، ان 7 میں سے وہ 2 دوست بھی ہوں گے جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ مطلب، مفاد، مقصد سے تھوڑا سا آگے آئیں اور کسی سے اللہ کے لیے بھی پرید کر لیں حضرت صاحب ہیں۔ اسی لیے تو حضرت ہماری پریتیں اب نب نہیں رہی، ہمارے تعلقات اب نب نہیں رہے۔ کیوں بھلا؟ میاں صاحب نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں مندیاں نال تے نب جان، چنگیاں نال تے نب جاندیے جے کر آپ نبھائیے، چنگیاں نال تے نب جاندیے جے کر آپ نبھائیے، مندیاں نال تے تا نب دیے جے کر کسراں کھائیے۔ ہماری اس لیے نب نہیں رہی کیونکہ پاکستانی قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ کسر کھانی نہیں، کسر لانی، اس لیے ہن ساڈی نب دی، ساڈی ہر ایک نال لڑائی ہے، وہ دے نال صرف ساڈی صلح ہے کہ جہدے نال سانو کوئی کام یا کم پہ سکتا ہے، باقی ساڈی کسے نہ لگدی، بلکہ کسے نہ کی لگنی سی، ساڈی سکے بھرا نہ نہیں لگدی، ساڈی سکی بھین نہ نہیں لگدی ہے، اسی مامے نہ نہیں بولدے، اسی چاچے نہ نہیں بولدے، اسی تائے نہ نہیں بولدے۔ پتہ نہیں حضرت ہم کہاں کھڑے ہیں حضرت، نفرتوں کا بازار گرم ہے حضرت۔ میں کل پڑھ رہا تھا، بڑا میں رویا کہ یار پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے کس کے انداز اختیار کر لیے۔ جب جنگ بدر ہوئی، کثیر تعداد میں کافر واصل جہنم ہوئے حضرت، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 کافر گرفتار ہوئے تھے، اور اس وقت تک مدینہ پاک ظاہری لحاظ سے ابھی اتنا سٹیبل نہیں ہوا تھا کہ کوئی اسپیشل جگہ ہوتی کہ جہاں ان 70 قیدیوں کو رکھا جاتا۔ اس لیے وہ جو 70 قیدی تھے ان کو مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھا گیا تھا حضرت، اور ڈیوٹی لگی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بلال تو نے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں یہ رسیاں کھولنا نہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں ڈیوٹی پہ تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں، چہرہ انور پہ، چہرہ ودھا پہ بڑی زیادہ بے چینی کے آثار، اور اللہ کے رسول پھر تشریف لے جائیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں، قیدیوں کو دیکھیں، چہرہ ودھا پہ بڑے زیادہ بے چینی کے اثرات، اللہ کے رسول پھر تشریف لے جائیں۔ کہتے کئی بار ایسے ہوا، میں نے ارادہ کر لیا اب جب اللہ کے رسول آئیں گے نا تو میں ضرور عرض کروں گا اللہ کے رسول میں آپ کو بے چین دیکھ رہا ہوں، حکم تو فرمائیں۔ کہتے اللہ کے رسول پھر تشریف لائے، میں نے قدم بوسی کی اور عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کو بے چین دیکھ رہا ہوں، آپ بار بار تشریف لاتے ہیں، قیدیوں کو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، حکم تو فرمائیں۔ تو آگے سے اللہ کے رسول فرمانے لگے اے بلال اس طرح کر، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ پتہ نہیں اسی کتے طریقے دے، پتہ نہیں ہم کس کے انداز اختیار کر لیے، ہم نے مارنے آئے تھے،
मदीना पाक को सफ़ा हस्ती से मिटाने आए थे, इस्लाम को ख़त्म करने आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजूद ख़त्म करने के लिए वो आए थे। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, कई वासिले जहन्नम हुए, 70 गिरफ्तार हो गए। बनता था उनका बंदना हजरत, क्या क्या नहीं उन्होंने किया था अल्लाह के रसूल के साथ। सारे वही थे हजरत, हैं जी। रास्ते में कांटे बिछाए, हुजूर से ने हरम में नमाज पढ़ रहे थे, लाके ऊँट की ओजरी आपकी पुश्ते अनवर पे रख दी हजरत, क्या क्या नहीं हुआ। और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, बिलाल इन्हां दियां रस्सियां ढिलियां कर दे, मैनू नींदर नहीं आन रही। पता नहीं हम किसके अंदाज में। और मैं हैरान हूँ हजरत अपनी कौम पे, हो इधर क्या रहा है। हमारे इधर सुबह स्कूलों में पढ़ा क्या जाता है, हो मेरा काम गरीबों की, जिहड़ी कि कदी भी नहीं की थी, जिहड़ी कि कदी भी की थी कोई नहीं है। लेकिन सुबह पाकिस्तान, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, कश्मीर, हर स्कूल में सुबह असम्बली में यही पढ़ा जाता है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से। पढ़ते ये हैं लेकिन करते बिल्कुल उल्टा। बल्कि मेरे कानून में तो इतना, मेरे मुल्क में तो इतना अंधा कानून है, गंगा ऐसी उल्टी बह रही है कि यहाँ क्या होता है कि अगर अमीर अपनी लैंड क्रूज़र या पराडो के नीचे 6-7 बंदों को कुचल के मार दे तो डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के देता है कि पागल है। इतने ज़्यादा इदारे होने के बावजूद फिर वो बंदा टिकट खरीदता है और किसी एयरलाइन के जहाज़ पे बैठकर दुबई। और पढ़ती कौम क्या है, वो मेरा काम गरीबों की। और जैसे साइकिल चोर फड़िया जाए तो वो कानून है, वो थाना है, वो जेल है। ठीक है, पढ़ना चाहिए वाकई, उसने साइकिल चोरी किया है, लेकिन कम अज़ कम हजरत उसका इतना बनता था कि यहाँ SHO साहब आपे जाते या किसी को भेजते, जाओ यार वेख के ये घर के हालात की ने, क्यों साइकिल चुकन लगा सी। अमीर वास्ते सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन गरीब वास्ते इतने कुछ भी होंदा। हला उसका बनता था कि कोई जाके देख के आता कि घर खान को रोटी भी है भी कि नहीं, जड़ा साइकिल चुकन लगा सी, कोई नहीं। लेकिन पढ़ते क्या है, मैंने तो कहा था उस दिन, मैंने कहा यार बदल लो इनू ना, जो कर दे वो पढ़ो ही है। मैं बता देता हूँ, किसी शायर से ठीक करवा लो तो ये पढ़ा करो, ये पढ़ा करो, हो मेरा काम गरीबों को तुन के रखना। जो कर रहे हो पढ़ो भी वही यार। क्या झूठ बोलते हो सुबह सुबह, और बच्चों को भी झूठ सिखाते हो। नहीं पुत्र, अल्लाह का वास्ता दे के कहना वहाँ को बदली अपने आप मसीह। बहुत काम खराब हो गया है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। वजह सिर्फ क्या है, कहते कुछ हैं करते कुछ है। अगर आपको मेरी बातों का गुस्सा लग रहा है तो ये बात तो मैं कोई नहीं कर रहा, ये बात 100 साल पहले इकबाल ने भी की थी। और इकबाल ने भी रो के कहा था, इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। ताड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ताल्लुक, ताड़ा तो बस शनाख्ती कार्ड ਦੇ खाने 'ਚ लिखा है मुसलमान, बाकी तुम कितों मुसलमान। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं था मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं। हमारे हाथों और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज है हज़रत साहब, दूसरों को छोड़ो अपने कोई नहीं महफूज है हज़रत साहब। हमने अपनों के गिरेबान पकड़ रखे हैं हज़रत साहब। ये कभी कैंट जाओ ना, ये चाइना चौंक से बराम की मोड़ से आगे जाके इस साइड बुलारी अड्डा, सामने कैंट है हज़रत। जैसे आप कैंट में एंटर होंगे तो कभी देखिएगा कि सड़क के बीच में एक तख्ती लगी है हज़रत, उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है जम्मू 32 किलोमीटर है। हालांकि मैं बहुत कम उस रास्ते से जाता हूँ, मैं जज्बाती बंदा हूँ, हसास तबीयत है थोड़ी सी, मैं अक्सर उधर टुर जाना, लेकिन बाद दफ़ा मुझे भी जाना पड़ता है। और फिर जब उस तख्ती पे नज़र पड़ती है जिस पे लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर, तो फिर इधर तकलीफ़ होती है, और कितनी देर तकलीफ़ होती रहती है। क्यों कि वो सिर्फ मुझसे 32 किलोमीटर दूर थे और मैं उनके लिए कुछ भी। गुस्सा मेरे च बड़ा है लेकिन निकलिया जदों भी अपने, डंड मेरे बड़े बड़े ने लेकिन जदों भी विखाए अपने, कद मेरा बड़ा है लेकिन जदों भी डराया अपने, छाती मेरी बड़ी चौड़ी है लेकिन जदों भी विखाई अपने, बंदूक जदों कड्डी अपने ते, गोली जदों चलाई अपने ते, घोड़ी जदों चुकी अपने। वो 77 साल हजरत वहाँ बैठ के हमें रोते रहे
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। लेकिन सानू जदों भी गुस्सा आया, असीं जदों भी गिरेबान फड़े, साडा गुस्सा, साडी ताकत, साडा जोर, साडे कद उन्हां दे काम आए। अब उन्होंने भी हजरत जी ये वाला नारा लगाना छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि इन्हां तिलों में तेल, इन्होंने एक दूजे के गलमे फड़े ने, इन्होंने इन्हों दे आके की फड़ने ने। शहादतें इतनी हुई, इज्जतें इतनी लुटी, जब उनका दिल चाहा जिसकी बेटी चाहिए उठा के ले गए हजरत। और असी मैं 32 किलोमीटर इथों कितना बनेगा जी अंदाजन सियालकोट 25 किलोमीटर, 30 ते 20 50 ते 2 52 किलोमीटर, मेरे तू 32 ते ताड़े तू। लेकिन इकबाल दुहाइयां देता रहा। इकबाल ने कहा हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर, एक दूजे ना लड़ना नहीं, एक दूजे दे गल में पड़ने नहीं, एक दूजे दे बंदूक चुकनी नहीं, एक दूजे से गुस्से करने नहीं। हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। असी बिल्कुल उल्ट साढ़े गुस्से बल्कि अपने नहीं सियाने ने जी गुस्से साढ़े। माड़े ते आएगा, रक्शे वाले ते आएगा, सब्जी वाले ते आएगा। मैं उस दिन सब्जी लेने चला गया, वो बंदे ने पूछा, मेरे गंढे वालों पूछा, तो बेचारे ने कोई दसे पैसे तो वो लड़ पिया, भाई तुही तो अग लाई है। मैं भाई जी ठंडे हो जाओ, माड़ा बंदा है तो गुस्सा आन डे। नहीं नहीं हजरत साहब वेखो गल ही गुस्से वाली। मैं हजरत साहब कभी बाट वाले ने भी जाके लड़े हो अग लाई है तुम है अजीब तमाशे लाए ने, माड़े के गुस्से कढ़ते हो तुम, चिंची वाले दे कढ़ोगे। उस दिन मैं हम तो रहते सड़कों पे हजरत, वो बेचारे किसी चिंची वाले को कार में रगड़ लग गई, बनदियां है सन चिंची वाले दियां, और उन्नियां उन्होंने पै गई सन हजरत साहब, क्योंकि उल्टा आन डया था हजरत। बंदे खुदा दिया कट अगे वे अगे जा जाके उल्टा आन डया ही, आन भी तेज दिया था ही, उन्हें गड्डी वो रगड़ चढ़ी, एनी बहुती भी नहीं रगड़ी गई लेकिन रगड़ी उन्हें। मैं दूसरी साइड उन्होंने मारन पे सारे ना, नक चू लहू पिया निकले। मैं उतर के गड्डी मैं जाके हाथ फड़ लिया, मैं हजरत जी हूँ एक चंड भी इन्होंने मारी हो वादू काम खराब हो जाना जी। उन्हें कहा हजरत देखो सारी गड्डी रगड़ छड़ी। मैं अल्लाह दे बंदे तू भी तो मूँह रगड़ छड़े ना, पढ़ के खून वगन डया मूँह, जिन्नियां बनदियां हैं ठीक है, अल्लाह तेन भी नहीं मारनियां चाहिए, शुक्रिया के तौर पर माफ़ कर छड़दा, लेकिन चल जिन्ना को उन्हें किया है तू ही बदला। नहीं मैं जड़ा ना ये कर दे मैं यार ठंडा हो, मैं रिक्शे वाला है ता मारना पे, नहीं हजरत कोई होर भी होंदा तो मैं मारना सी। मैं ड्राइवर ने कहा मेरी गड्डी चू कुरान शरीफ लैके आओ, लै आया। मैं कुरान ते हथ रख के कहा जी इलीयट फोर्स की गड्डी होंदी तो उन्होंने भी इंजी झंडा मारनी। तमाशा है पुत्र, सियाने गुस्से ने साडे, माड़ियां ते आंदे ने, तगड़े वारी तड़ियां वावन छुट जांदियां ने सारे। सियाना गुस्सा है। मैं तो कहा ना तगड़े ते करो ना माड़े ते करो यार, स्माइल दो जान बच गई, अपने अपने घर जाओ सारे। लेकिन की हर वेले लड़न घुलन नूं तैयार। मेरे जवानों नूं ते जनाब इन्ना को गुस्सा आंदा है ना, लेकिन आंदा बुढ़ी ते ही आंदा, आंदा मां ते ही आंदा माड़े ते। SHO ते आया कदी, कदी DPO ते आया हो, कदी DC ते आया हो, कदी DSP ते आया हो, कदी पुलिस वाले ते आया हो, कोई भी नहीं आंदा। तुहानूं जे पुत्तर तुहानूं एडे गुस्से आंदे तो पाकिस्तान का हाल होना ही नहीं कभी भी। तुहानूं कोई भी नहीं आंदा तां ही पाकिस्तान का हाल। देखो ना पाकिस्तान का हाल बिल्कुल पुत्र कसाई की दुकान पे लटके हुए उस बकरे की तरह है जिसकी खाल उतार ली गई है। और उन कसाई के लोग रौला पाण डे है, भाई धौन किन्ने लैनी है, सीना किन्ने लैना है, पुठ किन्ने लैनी है, अरकी किन्ने लैनी है, नलियां किन्ने लैनियां ने, कीमा किन्ने लैना है, चांपा किन्ने लैनियां ने, कलेजी किन्ने लैनी है। और ये पाकिस्तानी कौम जिनको माशाल्लाह बड़े गुस्सा आता है, ये कोल खो के पाकिस्तान का तमाशा वेखते हैं सारे। ये सारे पास खड़े होके पाकिस्तान का तमाशा देख रहे हैं। कभी सुनने को मिलता है इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट बिक गया है, कभी सुनने को मिलता है जी कल PIA की बोली लगेगी, कभी सुनने को मिलता है फलां दिन जो है ना वो स्टील मिल की निजकारी होगी। हजरत साहब कोड़े कोड़े कोट, किसी के कान पे जूं नहीं रही होती है, क्योंकि मेरी कौम को गुस्सा ही बड़ा आता है। लेकिन गुस्सा अपने आते, गुस्सा सियाने साडे, जिथे करना सी उत्थे किसी को आया ही कोई नहीं है, तो जिथे नहीं सी करना हजरत उत्थे गुस्से कर बैठे हैं। मैं जुम्मे में भी आज कह रहा था,
मेरा दिल कहता है कि बाबा साहब ने किसी की तरबियत की होगी। बाबा साहब बैठे थे, कोई बंदा कैंची लेके आ गया बतौर गिफ्ट हजरत, और उसने बाबा साहब को कैंची बतौर तोहफा पेश की। बाबा साहब ने फरमाया भाई तोहफा कबूल करने का हुक्म है, तोहफा लै लेना चाहिए, लेकिन मैनू जरा नहीं चंगी लगती, इसलिए भाई असी नहीं लैनी, कोई होर साडे लई तोहफा लैके आई है। उन्हें कैंची रख ली अपने कोल। तो थोड़ी कि देर बाद हजरत एक बंदा सूई लेके आ गया। बाबा साहब सूई वेख के बड़े ही खुश होए। हालांकि किन्नी कुछ सूई होंगी है, फड़िया हाथ में दिसे ना किसी को, चुमिया सिर ते रखी, फरमाया सानू सूई बड़ी पसंद है। वह वाह सूईए तेरे की कहने, वो तू किड्डी चंगी है, वो तेरे काम किड्डे चंगे। उस नाल बैठे हैरान हो, वो किसी ने अर्ज कर दी बाबा साहब कैंची नू ना कर छड़ी, सूई वारी इन्ने खुश होन डे। फरमाया कैंची नू तां ना कीती क्योंकि यह दो कर छड़ दिए, वक्खो वक्ख कर छड़ दिए, जुदाइयां पा छड़ दिए, तां सानू पसंद नहीं। तो सूई सानू तां चंगी लगती है जेड़े दो भी होए होण उन्होंने एक कर छड़ दी फड़ के, जेड़े वक्खो वक्ख भी हो गए होण उन्होंने भी एक कर छड़ दी। पुत्र एक हो, नहीं तो सानू किसी ने बारू मारन नहीं जाना, असी एक दूसरे को आप ही मार छड़ने। मुझे आज भी याद है, मैं जामिया निज़ामिया में था और हम पढ़ रहे थे, तो कोई हदीस पाक आई, तो हजरत ने तरबियत फरमाई। आपने फरमाया एक वक्त आएगा अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ जाएगी कि लोग सिर्फ एक दूसरे से गाड़ी आगे निकालने पे गोली मार देंगे एक दूसरे को, ठीक है। और ये हुआ है। नबी अलैहि सलाम की आमद से पहले अरबों की अखलाकी हालत इतनी ख़राब थी कि सिर्फ ऊँट अगे लगान ते वो पिछू नेज़ा या तीर मार के मार छड़ देंगे। कोई छोटे कबीले का बंदा अगर ऊँट आगे निकाल देता ना किसी बड़े कबीले वाले से, वो पिछू उन्होंने नेज़ा या तीर मार के मार छड़ देंगे सर। और फिर हजरत मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। हालांकि मैंने वहां बैठे मुंह से तो नहीं लेकिन दिल से एतराज किया था, यार यह किस तरह होएगा, पाकिस्तानी गड्डी अगे कण तू मार छड़ेगा, क्योंकि एतराज किया था। फिर शायद इसीलिए मेरे अल्लाह ने मुझे दिखाया, अभी शायद मैं ना देखता। शहाबपुरा रोड बाबर जनरल स्टोर पे मैं कुछ खरीद रहा था, तो बाहर से ना बड़ी तेज हारन बजने की आवाज़ आई। तो मैं बाहर निकला कि यार केड़ा एडा तेज हारन बजान डया। तो मंजर सड़क पे क्या था, क्योंकि सानू आदत है हजरत असी जो नवी गड्डी ले लईए तो उन्होंने विखाण का तरीका की है, डबल शारा ला दो, स्पीड वो 15 रखनी है तो चलानी तुसी पहली लैन ते, ताकि सारे पता लगे कि मैं गड्डी नवी लई। भाई गड्डी विखाण के होर भी बड़े तरीके ने, यह कोई तरीका नहीं ना, लेकिन पाकिस्तानियों कल गड्डी विखाण का तरीका यही है। वो भी यही कर रहा था, डबल इंडिकेटर लगा था, गाड़ी की रफ्तार हाथ 10 या 15 होगी और बिल्कुल गड्डी होती है, और पीछे गड्डियां की लाइन लगी है। बड़ा को पिछला ही वो वाह ही काला सी, वो हारन पे हारन, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहा, वो उसी तरह चला रहा है। मैं खड़ा देख रहा हूँ, वो जो पीछे वाला था ना उसने थोड़ी देर गाड़ी ही रोकी, पीछे वाली गाड़ी लगी भी उसको आके, लेकिन वो गुस्से में था उस वक्त। उन्हें इधरों कट के सामने ले आके गड्डी लाई उसे, और उसने जब दरवाजा खोल के बाहर निकला तो उसके हाथ में क्लैशन कोफ थी। उन्हें सीधी को 2.5 साल पहले की गल है, उन्हें सीधी गड्डी से फायरिंग की थी। जो इस साइड वाला था वो तो उधर ही मर गया, और जो उस साइड वाला था उसको भी 7 गोलियां लगी, पता नहीं बच गया या मर गया। फिर मुझे अपने हजरत की बात याद आई कि अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ जाएगी कि लोग सिर्फ गाड़ी आगे गुजारने पे एक दूसरे पे गोली चला दिया करेंगे। और हम जा रहे हैं पुत्र उस तरह। अल्लाह का वास्ता है, रुकिए, रोकिए अपने आप में, और कुछ सीखिए और कुछ सिखाइए।